Hello students, today we are continuing with the male reproductive system. As last time we have seen the male reproductive system diagram complete. Today we are going to discuss the complete male reproductive system. First of all, what are accessory ducts? Accessory ducts in males. Accessory ducts in male mean they are tube-like structures. They are helping for conduction of secretions. They are helping for conduction of sperm. तो ये accessory ducts are tubular structures. Ducts मतलब tubular structure होते हैं, जैसे RV, EV लास्ट टाइम पढ़े हम, रेटी टेस्टिस, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में जो स्पर्म प्रोड्यूस होंगे वो रेटी टेस्टिस में रिलीज होंगे. Okay, what are seminiferous tubule? Seminiferous tubule are called structural and functional unit of testes. Just like brain is made up of neuron, kidney is made up of nephron. Like that जो है testes is made up of seminiferous tubules. Reti testes में sperm release होंगे first. From there it move to vasa efferentia. Vasa efferentia. From vasa efferentia it move to epididymis. एपिडिडाइमिस से होते हुए स्पर्म वासा डिफरेंस में जाते हैं. सो दीज आर कॉल्ड एसेसरी डक्ट्स इन मेल. सेम ऐसे ही क्वेश्चन, व्हाट इज एसेसरी ग्लैंड्स? एसेसरी ग्लैंड्स इन मेल. जैसे टेस्टिस में स्पर्म प्रोड्यूस होंगे, स्पर्म प्रोड्यूस होने के बाद स्पर्म्स आर कमिंग आउट ऑफ द टेस्टिस थ्रू रेटी टेस्टिस, वासा एफरेंशिया, एपिडिडाइमिस, वासा डिफरेंस. सेम ऐसे ही कुछ ग्लैंड्स हैं मेल में विच आर एसोसिएटेड विद द रिप्रोडक्टिव सिस्टम, विच इंक्लूड ए पेयर ऑफ सेमिनल वेसिकल, सिंगल prostate gland, and a pair of bulbourethral gland. Okay, so these are the accessory glands associated with male reproductive system. अब इनके functions की अगर हम बात करेंगे, what are the functions? 60 to 70% of the semen, 60 to 70% of seminal plasma या semen बोल सकते हैं, that is secreted by seminal vesicle. Seminal vesicle is contributing maximum to the semen. What is semen? Semen is equal to sperm plus seminal plasma, and that seminal plasma is secreted by seminal vesicle, prostate gland, bulbourethral gland. तीनों ग्लैंड से कुछ ना कुछ तैयार हो रहा है, and that combinedly called seminal plasma. ठीक है, seminal plasma. सीमेन जो प्रोड्यूस हो रहा है मेल में, that includes sperm plus seminal plasma. Seminal plasma is secreted from accessory glands in male. accessory glands हैं. और सबसे इंपॉर्टेंट, semen contain fructose secreted from seminal vesicle. Seminal vesicle secrete fructose in semen. semen में एक शुगर है फ्रक्टोज बोल के, एंड दैट प्रोवाइड एनर्जी फॉर द मूवमेंट ऑफ स्पर्म. सेमिनल वेसिकल से निकल रहा है फ्रक्टोज. सिमिलरली प्रोस्टेट ग्लैंड से क्या प्रोड्यूस हो रहा है? प्रोस्टेट ग्लैंड प्रोड्यूसेस अल्कलाइन मिल्की स्टिकी फ्लूइड. प्रोस्टेट gland produces milky sticky
अल्कलाइन फ्लूइड, अल्कलाइन फ्लूइड प्रोड्यूस हो रहा है प्रोस्टेट ग्लैंड से। प्रोस्टेट ग्लैंड, इट हेल्प इन एक्टिवेशन ऑफ स्पर्म, इट हेल्प्स इन एक्टिवेशन ऑफ स्पर्म, इट हेल्प इन एक्टिवेशन ऑफ स्पर्म बोल सकते हैं आप, प्रोस्टैटिक फ्लूइड या प्रोस्टेट ग्लैंड सिक्रीशन, it help in activation of sperm. Now bulbourethral gland, bulbourethral gland also called Cowper's gland बोल सकते हैं इसका और एक नाम, bulbourethral gland also called Cowper's gland, ठीक है, लिखिए bulbourethral gland also called Cowper's gland. Bulbourethral gland also called Cowper's gland, and this help in lubrication of the penis. It help in lubrication of the penis, ठीक है. ड्यूरिंग द एक्ट ऑफ कॉपुलेशन, ड्यूरिंग द सेक्सुअल इंटरकोर्स, सो पेनिस जो है उसका लुब्रिकेशन, इजी पैसेज, इजीली कॉपुलेशन प्रोसेस में, इंटरकोर्स प्रोसेस में पेनिस का जो लुब्रिकेशन है, दैट इज बिकॉज ऑफ बल्बोयूरिथ्रल ग्लैंड बोल सकते हैं. ओके, नाउ सेमेन क्या है? सेमेन समझ में आ गया. सेमेन इज इक्वल टू स्पर्म प्लस सेमिनल प्लाज्मा, एंड सेमिनल प्लाज्मा इज सीक्रेटेड फ्रॉम 3 glands. सेमिनल प्लाज्मा इज सीक्रेटेड फ्रॉम 3 glands. 3 glands कौन कौन से ग्लैंड्स? सेमिनल वेजिकल, बल्बोयूरिथ्रल ग्लैंड, काउपर्स ग्लैंड, आल्सो बल्बोयूरिथ्रल ग्लैंड भी बोलते हैं, प्रोस्टेट ग्लैंड. याद रहे प्रोस्टेट ग्लैंड सिंगल होता है, प्रोस्टेट ग्लैंड सिंगल होता है ना. मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हम देखें, फर्स्ट ए पेयर ऑफ सेमिनल वेजिकल है और एक सिंगल प्रोस्टेट ग्लैंड है, एंड देन ए पेयर ऑफ बल्बोयूरिथ्रल ग्लैंड है. ठीक है ना. दिस इज व्हाट मेल एसेसरी ग्लैंड, ये सेमिनल वेजिकल, द सेकेंड वन प्रोस्टेट ग्लैंड, एंड थर्ड वन बल्बोयूरिथ्रल ग्लैंड. Remember student, bulbourethral gland is also called Cowper's gland बोलते हैं, याद रखना है. चलिए आगे. What is the volume of semen? Volume of semen कितना होता है? Volume of semen in single ejaculation, how much semen is normally secreted? Semen normally 3 to 4 ml in single ejaculation. 3 to 4 सीमेन का वॉल्यूम कितना है? ठीक है. सीमेन क्या है समझ में आ गया आपको. सीमेन जो है मेल एजैकुलेशन के टाइम में जो फ्लूइड बाहर आएगा, दैट फ्लूइड इज कॉल्ड सेमेन. सेमेन इज इक्वल टू, जैसे मैं बताया, स्पर्म प्लस सेमिनल प्लाज्मा. सिक्रीशंस फ्रॉम 3 ग्लैंड्स आर सेमिनल प्लाज्मा. ठीक है. वॉल्यूम कितना होता है सेमेन का? 3 to 4 ml. 3 to 4 ml सेमेन रिलीज होता है इन सिंगल एजैकुलेशन. पीएच कितना है इसका? 7.3 है. सेमेन का पीएच 7.3. अगर सेमेन में एक बार सेमेन जो रिलीज होता है सिंगल एजैकुलेशन में, द ह्यूमन मेल एजैकुलेट नियरली अबाउट 200 to 300 million sperms in single ejaculation. Human males ejaculates nearly 200 to 300 million sperms. Million sperms in single ejaculation. In single ejaculation. एक बार जो ejaculate होता है फ्लूइड, उसमें 200 से 300 मिलियन स्पर्म हो सकते हैं.
अगर कम रहेंगे स्पर्म तो क्या है कंडीशन? ऑलिगोस्पर्मिया बोल के एक वर्ड आएगा यहां पर, ऑलिगोस्पर्मिया। ऑलिगोस्पर्मिया मीन्स लो स्पर्म काउंट। नॉर्मल जो फर्टाइल मेल है, एक नॉर्मल हेल्दी मेल रिलीजेस 200 to 300 मिलियन स्पर्म इन सिंगल एजैकुलेशन। अगर लो स्पर्म काउंट है, लो स्पर्म काउंट, हाँ लो स्पर्म काउंट बोलते लेस देन 20 मिलियन, लेस देन 20 मिलियन, इसको भी हम लो स्पर्म काउंट ही बोलेंगे, लेस देन 20 मिलियन पर ml। दिस इज ऑल्सो ए ऑलिगोस्पर्मिया कंडीशन, जिसमें भी ऑलिगोस्पर्मिया कंडीशन में भी थोड़ा सा फर्टिलिटी कम हो जाती है। अजूस्पर्मिया कंडीशन बोल के भी है। अजूस्पर्मिया मतलब एब्सेंस ऑफ स्पर्म, टोटली स्पर्म ही नहीं है, एब्सेंस ऑफ स्पर्म, नो स्पर्म फॉर्मेशन, एब्सेंस ऑफ स्पर्म इज कॉल्ड अजूस्पर्मिया। एस्थीनोस्पर्मिया, एस्थीनोस्पर्मिया बोल के एक टर्म आता है। व्हाट इज एस्थीनोस्पर्मिया? लो स्पर्म मोटिलिटी, एस्थीनोस्पर्मिया, ये बहुत काम के वर्ड हैं, एग्जाम में पूछते रहेगा। रिड्यूस स्पर्म मोटिलिटी, रिड्यूस्ड स्पर्म मोटिलिटी, this is called asthenospermia. Now one more, teratospermia, teratospermia, teratospermia का मतलब होगा abnormal morphology, abnormal shape of sperms, abnormal shape sperms। ठीक है, एक हेल्दी मेल फर्टाइल मेल में कितने स्पर्म रहना चाहिए इन सिंगल एजैकुलेशन? 200 से 300 मिलियन स्पर्म रहना चाहिए, वन कंडीशन इन सिंगल एजैकुलेशन। अगर 200 से 300 मिलियन स्पर्म से भी कम हैं, कितने? लो स्पर्म काउंट, लो स्पर्म काउंट मतलब यहाँ पे लेस देन 20 मिलियन पर ml स्पर्म है, दैट इज कॉल्ड ऑलिगोस्पर्मिया, लो स्पर्म काउंट। अजूस्पर्मिया मतलब एब्सेंट है स्पर्म। एस्थीनोस्पर्मिया मतलब स्पर्म की मोटिलिटी कम है। Teratospermia means abnormal shape sperms. So this all condition leads to the chances of male sterility. Okay, for a fertile normal male, for a fertile normal male, 60% sperm must be, 60% sperm must be normal shape and size, and 40% of the sperm should be vigorous motility, showing vigorous motility. Then only such males are having fertility property. मतलब जो फर्टाइल मेल हैं उनके 60% स्पर्म नॉर्मल शेप एंड साइज के होना चाहिए और 40% स्पर्म विगरस मोटिलिटी दिखाना चाहिए, देन ओनली दे आर कॉल्ड फर्टाइल मेल। फॉर ए नॉर्मल, फॉर नॉर्मल फर्टिलिटी, नॉर्मल फर्टिलिटी 60% sperm must be 60% sperm must be normal shape and size, normal shape and size, and 40% sperms should show vigorous motility, vigorous motility। इतना तो होना ही चाहिए कंपलसरी, तभी वो फर्टाइल होगा। अदरवाइज there are many humans who are unable to have their children, they are unable to have their own progeny, उनको बच्चे नहीं हो रहे हैं। क्या रीज़न है? तो 60% स्पर्म जो है मस्ट बी नॉर्मल शेप एंड साइज के होना चाहिए आउट ऑफ 200 to 300 मिलियन स्पर्म्स इन सिंगल एजैकुलेशन। 60% नॉर्मल शेप एंड साइज के होना चाहिए और 40% स्पर्म तो कंपलसरी मोटिलिटी दिखाना चाहिए, विगरस मोटिलिटी दिखाना चाहिए, देन ओनली दे आर मोटाइल।
देन ओनली दे आर फर्टाइल बोल सकते हैं आप। ठीक है, चलिए आगे पढ़ेंगे। और मेल से एसोसिएटेड जितने भी पॉइंट्स हैं सारे आ रहे हैं, देखिए वन बाय वन मेल से रिलेटेड। आफ्टर मेल डिस्कशन वी कैन मूव टू फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। नेक्स्ट है, देखिए द मस्कुलर ट्यूबुलर ऑर्गन। द मस्कुलर ट्यूबुलर ऑर्गन, muscular tubular organ in male is called penis, its enlarged end is called glans penis, जो मस्कुलर ट्यूबुलर ऑर्गन है मेल में दैट इज पेनिस, और उसका जो एनलार्ज एंड है उसको आप ग्लैंस पेनिस बोलेंगे, है ना। सो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आप पढ़ते हैं ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम लाइक दिस इज द कंप्लीट पेनिस, और इसका जो एनलार्ज एंड है दैट इज कॉल्ड ग्लैंस पेनिस। और ग्लैंस पेनिस के ऊपर यहाँ पर एक कवर होता है, स्किन फोल्ड होती है, दैट स्किन फोल्ड इज कॉल्ड फोर स्किन बोल सकते हैं, या प्रीप्यूस भी बोल सकते हैं, प्रीप्यूस या फोर स्किन बोल सकते हैं। ठीक है, यहां पे लिखिए दिस ग्लैंस पेनिस इज कवर्ड बाय ए मूवेबल स्किन, ग्लैंस पेनिस इज कवर्ड बाय ए मूवेबल स्किन कॉल्ड प्रीप्यूस और फोर स्किन। ग्लैंस पेनिस जो एनलार्ज एंड है, ग्लैंस पेनिस इज कवर्ड बाय मूवेबल स्किन कॉल्ड प्रीप्यूस और फोर स्किन भी बोल सकते हैं इसको। ठीक, प्रीप्यूस और फोर स्किन। Removal of prepuce by surgery is called circumcision. Removal of foreskin or prepuce by small surgery is called circumcision. ये जो स्किन है ग्लैंस पेनिस का जो स्किन है इसको निकाल दिया जाता है इन सम ऑफ द केसेस। ये पेनिस के ऊपर जो यहाँ पर जो स्किन आ रही है ग्लैंस पेनिस के ऊपर, दैट इज सर्जिकली रिमूव्ड बाय परफॉर्मिंग ए माइनर सर्जरी। सो दिस रिमूवल ऑफ foreskin is called circumcision, and peoples do circumcision because of some religious reasons or because of some hygienic condition. कुछ लोग hygienic condition के लिए भी करा लेते हैं, या कुछ लोग जो है religious reason के वास्ते निकाल देते हैं। Penis is erectile copulatory organ. Penis is erectile copulatory organ. Erectile copulatory organ in males. ठीक है, इसको बोल रहे हैं हम erectile. During excitement और during sexual intercourse के टाइम में जो है पेनिस के अंदर ब्लड प्रेशर, ब्लड सप्लाई ज़्यादा हो जाता है, ब्लड सप्लाई, जिस वजह से penis becomes hard, and that process is called erection, and it is a copulatory organ, and by this erection the male can easily inject their secretions, that is a sperm, into the female reproductive system. नोट कर लीजिए पॉइंट। So penis is erectile because of three types of masses of muscles. Three longitudinal cylindrical masses of muscles are helping for erection. NCERT में पूछ रखा है
there are some erectile tissues, there are some erectile tissues in पेनिस, लेकिन आपको उनके erectile tissues के नाम तो नहीं दिया है एनसीईआरटी में, but they can ask in exam. Penis is composed of three longitudinal, penis is composed of three longitudinal masses, three longitudinal masses of erectile tissues. Erectile tissue gets filled with the blood, है ना. Erectile tissues में blood fill हो जाता है, so the structure becomes swollen and harder because of high blood pressure and more blood supply. So यहाँ पर कौन से tissues हैं जो erection में help कर रहे हैं मेल में? These masses are right and left corpora cavernosa, include a pair of corpora cavernosa and a single corpora spongiosum. Corpora cavernosa, corpora spongiosum. These are the erectile tissues which are helping for erection of the penis. Erection of the penis में help करने वाले structures, tissues कौन से हैं? Corpora cavernosa and corpora spongiosum. Erection of penis is mainly vascular phenomena. Erection of penis is vascular phenomena and is under control of autonomic neural system, ANS, autonomic neural system. It occurs due to increase of blood supply. Erection occur due to more blood supply, dilation of arteries in penis, causing enlargement and hardening of penis. So that means erection जो है एक autonomic process है, ये voluntary नहीं है, it is autonomic neural system. Okay, during sexual intercourse, male and female जब intercourse में होते हैं, that time penis जो है erection हो रहा है. erection क्यों हो रहा है बल्कि reason पूछे आपको. Erection is nothing but enlargement and hardening of the penis. Why it occur? बोलते it occur due to more blood supply. It occur due to dilation of arteries. लिखिए. Okay, causing enlargement and hardening of penis. So this facilitate the release of semen into the female reproductive system. So टेस्ट जब पेनिस का जो क्रॉस सेक्शन लेते हैं हम, पेनिस का क्रॉस सेक्शन लेके देखते हैं. सो इनसाइड द पेनिस देयर आर 1 2 3 टाइप्स ऑफ मसल, लॉन्गिट्यूडनल मसल्स होते हैं. कार्पोरा कैवर्नोसा, 2 कार्पोरा कैवर्नोसा हैं और एक कार्पोरा स्पॉन्जियोसम है. दिस इज द क्रॉस सेक्शन ऑफ द पेनिस.
पेनिस का जब क्रॉस सेक्शन लिया जाता है तो ये कार्पोरा कैवर्नोसा एंड दिस इज कार्पोरा स्पॉन्जियोसम। कार्पोरा स्पॉन्जियोसम, इसके अंदर ब्लड फिल हो जाता है, एनलार्जमेंट हो जाता है, हार्डनिंग ऑफ द पेनिस, दैट इज ऑल कॉल्ड एरेक्शन। तो ये सारे पॉइंट्स आपको याद रहना है। देखिए रिलेटेड टू द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम सारे चीज़ें हम देख चुके हैं। ऑल द थिंग्स विच आर नेसेसरी फॉर योर एग्जामिनेशन प्रिपरेशन, सारे चीज़ें आ गए हैं। देखिए एक भी चीज़ नहीं छुटी है। अब हम आगे बढ़ेंगे। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जाने से पहले क्रॉस सेक्शन ऑफ द टेस्टिस देखना पड़ेगा। टीएस ऑफ टेस्टिस, टीएस ऑफ टेस्टिस। When we draw the cross section of the testis, testis is made up of seminiferous tubule। seminiferous tubule होते हैं testis के अंदर। Okay, like this is the cross section of the testis। inside the testis internal structure क्या है? ये सारे seminiferous tubule हैं, seminiferous tubules हैं। In between seminiferous tubule there are some cells। यहाँ पर कुछ cells हैं in between the seminiferous tubules। What are these cells in between the seminiferous tubule? जब टेस्टिस का क्रॉस सेक्शन लेकर माइक्रोस्कोप में देखा जाता है, so during that time my testis is having internally seminiferous tubules, or in between seminiferous tubule there are some cells called Leydig cells। Leydig cells बोलो, और इंटरस्टिशियल सेल्स भी बोल सकते हैं आप इनको, इंटरस्टिशियल सेल्स या Leydig सेल भी बोल सकते हैं। Now within the seminiferous tubule there are some elongated cells। There are some elongated cells। What are these elongated cells? इनको बोलते हैं हम सर्टोली cells। What we call सर्टोली cells बोलेंगे इनको। The elongated cells present inside the testes, they are Sertoli cells। In between seminiferous tubule, which cells are there? Leydig cells। Within the seminiferous tubule, Leydig cells are present। Leydig cells हैं इन बिटवीन सेमिनिफरस ट्यूब्यूल। ये elongated cells को हम सर्टोली सेल्स बोल सकते हैं, और यू कैन कॉल देम एज नर्स सेल्स। नर्स मतलब जो न्यूट्रिशन फूड वगैरह सप्लाई करती है। इन बिटवीन सर्टोली सेल देर आर सम सेल्स, स्फेरिकल शेप सेल्स, जिनको आप स्पर्मेटोगोनिया बोल सकते हैं। स्पर्मेटोगोनिया, स्पर्मेटोगोनिया बोल सकते हैं। दीज स्पर्मेटोगोनिया स्लोली दे डिवाइड एंड कन्वर्टेड इनटू स्पर्म्स। पहले स्पर्मेटिड बनेंगे, फिर स्पर्म बनेंगे। मतलब लेबलिंग कुछ ऐसा करना, आउटर साइड यू गेट स्पर्मेटोगोनिया, इनर साइड यू गेट स्पर्मेटिड, और स्पर्मेटिड से बनते हैं स्पर्म। स्पर्मेटिड से बनते हैं स्पर्म। सो यू कैन ड्रॉ सम ऑफ द स्पर्म्स हियर इन द ल्यूमेन ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल कनेक्टेड टू सर्टोली सेल्स। कुछ एलोंगेटेड, ये यही जो ग्रीन कलर के हैं ये स्पर्म हैं, ये स्पर्म्स प्रोड्यूस हो रहे हैं अंदर। So like this you complete the second seminiferous tubule also. First you get spermatogonia,
देन इनर मोस्ट लेयर यहाँ पे स्पर्मेटिड मिल रहा है आपको, स्पर्मेटोगोनिया आउटर साइड, स्पर्मेटोगोनिया आउटर साइड, स्पर्म्स इनर साइड. So we will study spermatogenesis process. वहां पर आपको डिटेल में मालूम होगा how the sperms are produced. Just here we are discussing how the internal structure of testes. यही है ग्रीन कलर के sperm which are connected. sperm के जो हेड होते हैं those heads are embedded in Sertoli cells. sperm के जो हेड हैं वो Sertoli cell से connected हैं. Here also you complete the same thing. Spermatogonia, बहुत सारे स्पर्मेटोगोनिया, अंदर की तरफ स्पर्मेटिड. Okay, like this you complete the diagram. So even cross section of the testes बोलेंगे या internal structure of the testes बोलते यही डायग्राम बनेगा. Okay, fill the cells here. और ये रहे sperms connected to Sertoli cells. Sperms connected to Sertoli cells. Okay, complete the diagram. Internal structure of testes. Complete the diagram. FSH एक हार्मोन है. FSH हार्मोन act on the Sertoli cell and stimulate the process of spermiogenesis. FSH हार्मोन फर्स्ट ईयर में पढ़े हैं आप. FSH हार्मोन act on Sertoli cells and stimulate the process of spermiogenesis. So what is meant by spermiogenesis? Spermiogenesis is conversion of spermatid into sperm. Conversion of spermatid into sperms is called spermiogenesis. What is the difference between spermatid and sperm? Spermatid जो है नॉन मोटाइल होता है. Spermatid is non motile, but sperms are actively motile. तो सारे पॉइंट्स लिख लीजिए. ये Sertoli cells also called nurse cells. ये भी पॉइंट आना चाहिए आपके नोट्स में. Sertoli cells also called nurse cells. Why they are called nurse cells? Because they provide nourishment to the sperms, nutrition to the developing sperms. They provide nutrition to sperm. Sertoli cell. They provide nutrition to sperms. Okay, ये पॉइंट्स नोट करके रखना है. देखिए, ओके, नोट करिए सारे पॉइंट्स. नाउ आफ्टर दिस फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की ओर हम बढ़ सकते हैं. फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. बट बिफोर दैट यू कंप्लीट द डायग्राम. अच्छे से डायग्राम बना लीजिए. मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड
स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिस भी हम देखे. टेस्टिस इज कवर्ड बाई 3 layers protective covers. What are the protective covers around the testis? Tunica vaginalis, tunica albuginea, tunica vasculosa. And what are the erectile tissues in testis, वो भी देख चुके हैं हम. ठीक है. So after this we will move to फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की ओर बढ़ेंगे. अब हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. So human female reproductive system. Female reproductive system. So first we will see internal structure of the female reproductive system. फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का इंटरनल स्ट्रक्चर देखेंगे. यू कैन मेक द डायग्राम. ये डायग्राम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. देखिए एग्जाम के लिए, फ्रॉम थ्योरी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, इवन नीट में भी बहुत सारे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछ लेता है रिलेटेड विद द स्ट्रक्चर. थोड़ा सा यहाँ पर क्या करना है, आप स्ट्रक्चर बनाते वक्त ये नैरो कर देना. लास्ट का पार्ट नैरो आना चाहिए. लास्ट का पार्ट नैरो, मिडिल में ब्रॉड आना चाहिए थोड़ा सा. ओके. देन फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स. कुछ ऐसे फिंगर लाइक स्ट्रक्चर बना दीजिए यहाँ पर. द इंटरनल फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या होता है? अब्डोमिनल होता है. मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एक्स्ट्रा अब्डोमिनल, आउटसाइड द अब्डोमेन मेल में. फीमेल में इंटरनल. So exterior female reproductive system opens outside through the vagina. Vagina open into cervix और cervix open होता है यूट्रस में. ठीक है. वेजिना आउटसाइड है. वेजिना ओपन आउटसाइड थ्रू द ओपनिंग कॉल्ड वेजिना है. ओपनिंग वेजिना. वेजिना ओपन इनटू सर्विक्स ओपन इनटू यूट्रस. चलिए ये हो गया, समझ में आ गया. नेक्स्ट यहां पर 3 पार्ट्स हैं. देखिए यहां पर ये फैलोपियन ट्यूब, दिस कंप्लीट फैलोपियन ट्यूब 10 to 12 सेंटीमीटर इन लेंथ. तो ये फर्स्ट पार्ट है नैरो isthmus. What is the first part of fallopian tube closest to the uterus? बोलते isthmus बोलेंगे. isthmus के बाद wider part ampulla, उसके बाद infundibulum. So these 3, isthmus, ampulla, infundibulum, these 3 combinedly called fallopian tube. नेक्स्ट है फिम्ब्रिए. फिंगर लाइक स्ट्रक्चर फिम्ब्रिए. फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड फिम्ब्रिए. एंड दिस फिम्ब्रिए, यहाँ पर फिम्ब्रिए के बाद
almond shaped primary sex organ of the female, ovary is present, one on each side, a pair of ovary बोल सकते हैं. Isthmus, ampulla, infundibulum, these three combinedly called fallopian tube. Isthmus, ampulla, infundibulum, combinedly fallopian tube बोल सकते हैं. Now next, इनर मोस्ट लाइनिंग ऑफ द यूट्रस, जो यूट्रस की जो अंदर की लाइनिंग है, दिस लाइनिंग इज कॉल्ड एंडोमेट्रियम. इनर लाइनिंग ऑफ द यूट्रस इज कॉल्ड एंडोमेट्रियम. यूट्रस की लाइनिंग होती है, 3 लेयर्स होते हैं यूट्रस में. यूट्रस इज मेड अप ऑफ 3 लाइनिंग्स, पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम. 3 लाइनिंग्स आर देयर. नोट, डायग्राम बनाइए पहले. सबसे बाहर की लेयर कौन सी है यूट्रस की? आउटरमोस्ट लेयर पेरीमेट्रियम. आउटरमोस्ट लेयर. मिडिल लेयर का नाम क्या है? मायोमेट्रियम. और सबसे इनर मोस्ट लाइनिंग इट इज कॉल्ड एंडोमेट्रियम. दीज 3 कंबाइंडली कॉल्ड यूट्राइन वॉल. यूट्रस बोल सकते हैं, यूट्रस का वॉल है ये. मिडिल में मायोमेट्रियम आना चाहिए. मिडिल इज मायोमेट्रियम. ओके. यस, एग्जाम में ये क्वेश्चन अगर पूछ ले तो टोटल 5 मार्क्स का क्वेश्चन होगा ये. एंड दिस साइड यूट्रस का, दिस साइड ऑफ द यूट्रस इज आल्सो कॉल्ड फंडस ऑफ यूट्रस. भी बोल सकते हैं. अपर साइड फंडस ऑफ यूट्रस. तो यहाँ पे पॉइंट्स क्या क्या बनेंगे? बिफोर गोइंग टू द पॉइंट्स, कंप्लीट द डायग्राम. कंप्लीट कर लीजिए डायग्राम ये. वेयर डेवलपमेंट ऑफ द फीटस ऑकर. फीटस का जो डेवलपमेंट है, एम्ब्रियो का जो डेवलपमेंट है, दैट डेवलपमेंट ऑकर इन यूट्रस. डेवलपमेंट जो है यूट्रस में होगा यहाँ पर. एंड फर्टिलाइजेशन जो है, फ्यूजन ऑफ स्पर्म एंड एग, इट ऑकर इन फैलोपियन ट्यूब. ओके, फैलोपियन ट्यूब में होगा फर्टिलाइजेशन. एग्जैक्टली फर्टिलाइजेशन कहाँ होगा बोल तो एम्पुला रीजन में फर्टिलाइजेशन हो जाएगा. चलिए, यहां पे अब कुछ पॉइंट्स बनने वाले हैं डायग्राम कंप्लीट होने के बाद. होप ऑल ऑफ यू कंप्लीटेड द डायग्राम. डायग्राम कंप्लीट हो गया है ना? सो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंटेन ए पेयर ऑफ ovary and a pair of ovary is called primary sex organ. Female reproductive system contain a pair of ovary. System contain a pair of ovary referred as primary sex organ. प्राइमरी सेक्स ऑर्गन ऑफ फीमेल. प्राइमरी सेक्स ऑर्गन बोले जाएंगे इसको, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन ऑफ फीमेल. अपार्ट फ्रॉम प्राइमरी सेक्स ऑर्गन देर आर मेनी एसोसिएटेड स्ट्रक्चर. ए पेयर ऑफ फैलोपियन ट्यूब it also contain a pair of
फैलोपियन ट्यूब पेयर में होगा, देखिए ए पेयर ऑफ फैलोपियन ट्यूब कॉमा सिंगल यूट्रस है, सिंगल सर्विक्स, सिंगल वेजिना. सो इन केस ऑफ नॉर्मल एक ह्यूमन फीमेल में ए पेयर ऑफ फैलोपियन ट्यूब होगी, सिंगल यूट्रस होगा. फैलोपियन ट्यूब पेयर में होगा, सिंगल यूट्रस, सिंगल सर्विक्स, सिंगल वेजिना. यहाँ पर जो है सर्विक्स प्लस वेजिना इज इक्वल टू बर्थ कैनाल बोलते हैं. आफ्टर द फुल टर्म ऑफ द प्रेगनेंसी बेबी इज डिलीवर्ड आउट. प्रेगनेंसी पूरा जो है गेस्टेशन पीरियड यूट्रस में कंप्लीट होगा. आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ फुल टर्म ऑफ प्रेगनेंसी द डिलीवरी ऑकर, द बेबी कम्स आउट थ्रू द बर्थ कैनाल. तो बर्थ कैनाल में कौन कौन से पार्ट हैं? सर्विक्स प्लस वेजिना, दीज आर द टू पार्ट्स. ओके, वेयर फर्टिलाइजेशन ऑकर? फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस इन फैलोपियन ट्यूब. फैलोपियन ट्यूब के भी थ्री पार्ट्स हैं ना. फैलोपियन ट्यूब is 10 to 12 centimeter in length. It is made up of three parts. Three parts हैं इसके अंदर. What is the first part? Closer to ovary. Funnel shape. Infundibulum closer to ovary. अब एग्जाम में क्या होता है, क्वेश्चन पूछा है व्हाट आर द पार्ट्स ऑफ फैलोपियन ट्यूब फ्रॉम ओवरी टू यूट्रस, मतलब ओवरी से यूट्रस जाइए, या नहीं तो एग्जाम में पूछेगा यूट्रस टू ओवरी शुरू करेंगे तो पहले इस्तमस मिलेगा, फिर एम्पुला, फिर इन्फंडिबुलम. अगर ओवरी से फैलोपियन ट्यूब जाएंगे तो पहले इन्फंडिबुलम मिलेगा, फन्नल शेप होगा ये. देन एक वाइडर पार्ट एम्पुला, सबसे जो वाइड पार्ट होगा एम्पुला होगा. एंड नैरो सबसे कम थिकनेस जो होता है नैरो पार्ट इस्टमस, क्लोजर टू यूट्रस. ये याद रखेंगे. नेक्स्ट पॉइंट, फर्टिलाइजेशन कहां होगा? फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस इन फैलोपियन ट्यूब. ओके, फैलोपियन ट्यूब में कौन से पार्ट में होगा फर्टिलाइजेशन? फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है. फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस इन एम्पुला रीजन, एम्पुला पार्ट ऑफ फैलोपियन ट्यूब. फैलोपियन ट्यूब के एम्पुला रीजन में होगा फर्टिलाइजेशन. एग्जैक्टली एम्पुला रीजन में. जिनके पास ओल्ड एनसीईआरटी है, ओल्ड एनसीईआरटी में दिया होगा फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस इन एम्पुलरी इस्थमिक जंक्शन बोल के, एम्पुलरी इस्थमिक जंक्शन. लेकिन यहाँ पे करेक्शन हुआ है न्यू एनसीईआरटी में, फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस इन एम्पुला रीजन ऑफ फैलोपियन ट्यूब बोलेंगे. ओके, नेक्स्ट, फ्रॉम द infundibulum finger like projections are there. From the infundibulum finger like projection arises, called fimbriae. क्या बोलेंगे उनको? फिम्ब्रिए बोलेंगे. What are fimbriae? Fimbriae are the finger-like projections coming out of the infundibulum. They help in collection of, they collect
the released secondary oocytes, they release secondary oocytes from ovary. अब ये सेकेंडरी oocyte क्या है, थोड़ा सा आप आगे पढ़ेंगे oogenesis प्रोसेस में. ओवरी रिलीज secondary oocyte and those secondary oocyte they travel from ovary to फिम्ब्रिए कलेक्ट कर लेते हैं उनको, एंड देन विद द हेल्प ऑफ सीलिएटेड एपिथीलियम, सीलिया होता है अंदर फैलोपियन ट्यूब में, सीलिएटेड एपिथीलियम टिश्यू है विच मूव द सेकेंडरी oocyte टू द टारगेट साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन, दैट इज एम्पुला एरिया में फर्टिलाइजेशन हो जाएगा. दैट मीन्स ये रहा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. तो यहाँ पे ये एम्पुला रीजन में स्पर्म यहाँ से निकलेंगे, मेल से डिपॉजिट होंगे पहले स्पर्म्स इनटू द वेजिना, फिर ये स्पर्म्स ऐसे यहाँ से माइग्रेट करेंगे, मिलियंस ऑफ स्पर्म जर्नी स्टार्ट्स, और यहाँ पर जाके एम्पुला एरिया में फर्टिलाइजेशन हो जाएगा. ओके चलिए नेक्स्ट. Uterus is made of 3 layers. Uterine wall is made up of 3 layers. Outer perimetrium, middle myometrium, है मेड ऑफ स्मूथ मसल्स, मायोमेट्रियम में स्मूथ मसल्स हैं. और इनर मोस्ट लेयर एंडोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम. सो 3 लेयर्स हैं यहाँ पर. पेरीमेट्रियम आउटर थिन मेम्ब्रेन है, ये आउटर थिन मेम्ब्रेन, एक मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है समझ लो आप, मेम्ब्रेन है वो, मसल नहीं है वहाँ पर, स्मूथ मसल नहीं है वहाँ पर पेरीमेट्रियम में, आउटर थिन मेम्ब्रेन. उसके बाद मिडिल मायोमेट्रियम विच इज मेड अप ऑफ स्मूथ मसल्स, और सबसे अंदर जो है एंडोमेट्रियम है. अब क्वेश्चन आ गया, विच लेयर ऑफ द एंडोमेट्रियम अंडरगो साइक्लिक ब्रेकडाउन ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल. मतलब हर मेंस्ट्रुअल साइकिल में क्या होता है, देखिए दिस इज व्हाट फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. यहाँ पे हम पढ़े यूट्रस का डायग्राम. सो 3 लेयर थे यहाँ पे, पेरीमेट्रियम, मिडिल में मायोमेट्रियम, और सबसे अंदर एंडोमेट्रियम बोला मैं. सो इन एवरी मेंस्ट्रुअल साइकिल व्हाट हैपन्स, इफ फर्टिलाइजेशन फेल्स टू ऑकर देन दिस एंडोमेट्रियम ब्रेक डाउन. ओके, in every menstrual cycle endometrium break down and regenerate, breakdown होगी and then regeneration of the endometrium. So endometrium is highly glandular layer, innermost glandular layer of the uterus which undergoes cyclic breakdown. So that point you can note down. Endometrium is glandular layer, and it periodically shed down during menses. जो इनर मोस्ट लेयर है एंडोमेट्रियम उतना ही ब्रेक होता है. ओके, एंड इट रीजनरेट, एंडोमेट्रियम इज कैपेबल ऑफ रीजनरेशन. ब्रेक होने के बाद फिर एक बार बन जाएगा एंडोमेट्रियम. Endometrium is capable of regeneration. Menses means bleeding. और यहाँ पे पॉइंट नोट करेंगे, एंडोमेट्रियम
is capable of regeneration. Once it break down, that means again in new round of menstrual cycle, this endometrium is capable of regeneration. रीजनरेट हो जाएगी. ठीक है. Normally in menses around 40 ml of blood is lost, and what is special about this menstrual blood? It is not capable of clotting, and it does not clot. It does not clot. मेंस्ट्रुअल जो ब्लड है क्लॉट नहीं होता है. नॉर्मल जो दूसरे ब्लड हैं, वेन एवर दे आर एक्सपोज टू ऑक्सीजन, विद इन 2 minutes दे बिकम सॉलिड एंड क्लॉट फॉर्मेशन ऑकर. लेकिन जो मेंसेस का ब्लड है, इट डज नॉट क्लॉट. वाई इट डज नॉट क्लॉट? बिकॉज इट हैज fibrinolysin, because it has fibrinolysin which break down the fibers, which break down the clot, ठीक है. So in today's class we have seen the female reproductive system. What are the important parts? बर्थ कैनाल क्या है, यूट्रस क्या है, फैलोपियन ट्यूब क्या है, ओवरी लोकेशन. डायग्राम यू प्रैक्टिस. फर्स्ट ऑफ ऑल यू गो थ्रू द डायग्राम and then you read explanation. Okay, we'll meet in next class with another topic. Thank you.